हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू solve the exercise NCERT class 9 13.7, and in this exercise specially we will discuss the volume of a cone. So first of all, to start this exercise, some basic thing we will discuss. Let us suppose this is any given cone A, B, C, and the center of base is O. Now, what do you understand by a cone? Cone is a geometrical figure whose base is circular and top is conical. So let us suppose this is the vertical height of the cone. This OC be the radius of its base and L be the slant height. Then in this right angle triangle AOC, right angle triangle AOC, the interrelation between the vertical height, radius of its base and slant height L is given by R square plus H square is equals to L square. So in the given cone, basically three unknown things are there: radius, height and slant height. Height means vertical height H. So out of any two is given, let us suppose radius and vertical height H is given, then we can calculate easily the slant height. If R and H is given, then H square will be equals to L square minus R square. So if slant height and radius is given, then vertical height we can calculate. And if vertical height and the slant height given, then R square will be equals to slant height square minus vertical square. So this is the intra-relation between the slant height and radius R and height, that is vertical height H, is given by L square plus R square plus H square. So this was the intra-relation between radius, vertical height and slant height. Now next, in previous exercise we discussed that when a cone is given, let us suppose this be the any given cone, slant height L, radius R, vertical height is H, then the total surface area of cone is given by its curved surface area and area of its base. Now, what is the curved surface area? Let us suppose this is the cone, then this base is circular. Circular means base will be always a circle, and if circle having radius r, then its area is pi r square. So, circle ka area pi r square, and this top conical part, its curved surface area is given by the base into height divided by 2. So base is 2 pi r, that is circumference of the circle 2 pi r, slant height is L and 1 by 2. So this is the curved surface area generally given by pi r L. So curved surface area plus area of its base combined will be the total surface area. So pi r plus pi r square, and if we take pi r as common, then L plus r. So you can learn this formula pi r plus pi r square or pi r into L plus r or r plus L. So two things again we discuss. If a cone is given, then curved surface area is pi r square, area its base is pi r square. So pi r plus pi r square, total surface area pi r into L plus r. Now last only one thing is remaining, that is volume of a cone. So what is the volume of a cone?
Volume of cone is given 1 by 3 pi r square h. 1 upon 3 pi r square h. This is the volume of a cone. How it is derived? देखिए, what is the volume of cylinder? Pi r square h, and the cone is just 1 by 3 of a cylinder. That's why its volume, this volume pi r square is the volume of cylinder, and if we multiply it by 1 by 3, then it will be the volume of a cone. So again revising this, first, what is the cut surface area of a cone? Pi rl. What is the total surface area of cone? Cut surface area plus area of its base, that is pi r into l plus r. What is the volume of cone? 1 by 3 of the volume of cylinder, that is 1 by 3 pi r square h. And what is the intra-relation between slant height, radius and height of a cone, that is r square plus h square is equals to l square. So on the basis of these four formula, we will do next exercise, that is exercise 13.7. So let us see first question. Find the volume of right circular cone with the radius 6 cm and height is 7 cm. So very simple question. क्या निकालना है बेटे? सबसे पहले ध्यान से पढ़े, वॉल्यूम किसका निकालना है? राइट सर्कुलर कॉन, कॉन का what is given? Radius is given 6 and vertical height, that is h, is 7 centimeter. So solution कैसे निकालेंगे बेटे? Given that, सबसे पहले what you have given, that you have to write. So given that radius of right circular cone, that is radius को क्या लिखते हैं? Small r. It is given 6 centimeter. Now second, height. So height को क्या लिखते हैं बेटे? h, and h is equals to 7 centimeter. Now volume of cone क्या होता है बेटे? Volume of cone, cone कहे चाहे right circular cone, RCC, right circular cylinder. Sorry, cone, right circular cone, that is equals to 1 upon 3 pi r square h. This is the formula. So put the value 1 upon 3 into pi means 22 by 7 into r square. What is r? 6 into 6 into. What is the vertical height? Height is 7. So this calculation we have to do now. 7 से 7 cancel हो जाएगा. 3 2 जा 6. Now remaining 22 2 जा 44 into 6 centimeter cube. Now we can multiply 6 4 जा 24 का 4 carry 2, 6 4 जा 24 and 2, that is 26. So 264 centimeter cube with the volume of this cone in part first. Okay, so hope the question is clear. Now let us do the next question. Next question, radius 3.5. What is given? Radius is equals to 3.5 centimeter and height s is equals to 12 centimeter. Now required क्या निकालना बेटे? Volume of cone. So you know what is the volume of cone? 1 upon 3 pi r square h. So see what is the base of question, this formula. Cone का volume कितना है? 1 upon 3 pi r square h. So how we will calculate? 1 upon 3 into 22 by 7 into r square. R square means 3.5 into 3.5 into h, that is 12. Now 3.5 यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 0, एक डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे, एक 0 और आ जाएगा. Now 7 5 जा 35, 3 4 जा 12. अब 5 से ये 100 कितने बार कट जाएगा? 20 बार. और फिर 20 and 35 ये 7 5 जा 35 and 5 4 जा 20. इस 4 से ये 4 कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा.
So what is the remaining? 22 into 7. So 7 2 जा 14 का 4, carry 1, 7 2 जा 14, 1 15 centimeter cube. So this is the volume of this right circular cone whose radius is 3.5 centimeter and height is 12. So how we have solved this question? सबसे पहले आपने radius लिखा, then height लिखा, then you have to apply only the formula. Volume of cone is 1/3 pi r square h. Just substitute the value, and this is the heart of this question. That is how you will calculate with correct answer and speedily. So इसके लिए थोड़ा सा जैसे अपन ने छोटे क्लासेस में किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या लिस्ट लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते थे। सेम वही प्रोसेस है, पहले अपन ने 7 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, बस थोड़ा सा आपको टेबल फास्ट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कैपेसिटी, find the capacity in the liters of a conical vessels. एक conical vessels दे रखा conical, ये यहाँ हिंट कर रहा कि कौन से रिलेटेड ही बात है। With radius 7 centimeter and slant height दे रखा 25 centimeter। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटे, वॉल्यूम ऑब्लिक कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है बेटे, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू 1/3 pi r स्क्वायर। केवल आपको लैंग्वेज लिखनी है कि क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कॉनिकल वेसल्स हैं, तो कॉनिकल वेसल्स होता क्या है, उसका शेप कैसा होता है, कॉन की तरह, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 pi r स्क्वायर h। मतलब ये फॉर्मूला है। अब अपने पास पाई r और h की वैल्यू हो तो अपन निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन क्या है बेटे, नाउ r is equals to 7 centimeter and slant height l is 25 centimeter। सो अपने को हाइट निकालना है। सो r square plus h square is equals to l square, ठीक है। यहां से हम h कैसे निकालेंगे बेटे, h स्क्वायर विल बी l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l देखिए 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 576, और 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 18। और 16 देखिए मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 into 6 24 होगा। ये कितना होगा 24। स्लांट हाइट जो होगी 576 जो है, दैट इज यहां से ऐसे कर सकते हैं। देखिए बेटे h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 576, तो h विल बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 576 और ये होगा आपका 24। कैसे 16 नहीं होगा, 24 को 24 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 48। तो देखिए 6 9 एंड 8 17 का 7 कैरी 1 576। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना बेटे 24। नाउ स्लांट हाइट आपको 25 दे रखी थी, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा था, उससे अपन ने हाइट निकाल ली, वो कितना आया बेटे 24। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना हो जाएगा बेटे, वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी वॉल्यूम ऑफ conical vessels बराबर 1/3 pi, pi means 22/7 into r square। r कितना दे रखा आपको 7 into 7 into हाइट कितना आ रहा आपका 24 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से 24 बार, 24 कितने बार कैंसिल होगा 8 बार। आप देखिए सो वॉल्यूम ऑफ conical vessels बराबर 22 into 7 that is 154 into 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 154 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 5 जा 40 and 3 43 कैरी 4, 8 and 4 12 1232 सेंटीमीटर
cube. So this is the question number first when radius is given and slant height given and अपने को वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे वर्टिकल हाइट निकालेंगे वर्टिकल हाइट निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल्स 1/3 pi r square h फार्मूला यूज लेंगे एंड कैलकुलेशन सो द क्वेश्चन इज क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हाइट देयर का आपको 12 सेंटीमीटर स्लांट हाइट देयर का आपको 13 सेंटीमीटर आप देखिए इसमें रेडियस नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सोल्व करेंगे बेटे देखिए गिवन h is 12 centimeter and slant height L is 13 centimeter सबसे पहले व्हाट इज द इंटररिलेशन r square plus h square is L square यहां से देखो अपने को r निकालना सो r square बराबर क्या होगा L square minus h square सो r square L square 169 minus h square 144 तो r square बराबर 25 r बराबर प्लस माइनस 5 इंप्लाई दैट r इज कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर ऐसे हमने आपको यहां पर रेडियस निकाल लिया नाउ क्या निकालना नाउ द capacity of conical vessel किसके बराबर होता है बेटे ये होता है 1/3 pi r square h सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि अपने को यहाँ यूनिट पता है सेंटीमीटर क्यूब तो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल्स और वॉल्यूम एक ही बात है इसके बराबर इंप्लाइज दैट ये किसके बराबर 1/3 22/7 into r square what is r is 5 into 5 into height कितना दे रखा है बेटे हाइट इज 12 सेंटीमीटर देखिए 3 से ये कितने बार कट जाएगा 4 बार बाकी आपका क्या है यू हैव टू कैलकुलेट तो 22 into 5 ये होगा 110 into 5 into 4 divided by 7 सेंटीमीटर क्यूब ओके सो देखिए ये कितना हो जाएगा 550 into 4 upon 7 सेंटीमीटर क्यूब नाउ यू कैन कैलकुलेट सिंपली 550 को 4 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना तो दिस मच विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन था कि कैपेसिटी इन लीटर के लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है कितना होता 1 लीटर 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब अगर आपके पास कोई भी एक वेसल्स है जिसका अगर LBH 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है ब्रेथ भी उसकी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी उसकी अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 into 10 into 10 ये कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा 1 लीटर के बराबर तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वॉल्यूम आ रहा है उसको आपको क्या करना है 1000 से डिवाइड करना है सो आंसर आपका लीटर में आ जाएगा सो क्वेश्चन क्लियर बेटे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन Now the next question is देखिए the height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube find the radius of its base क्या given है height of cone that is h is equal to given 15 centimeter and volume of cone volume is given 1570 centimeter cube ये है volume find the radius of its base देखिए वॉल्यूम क्या होता है बेटे वॉल्यूम है 1/3 pi r square h तो वॉल्यूम है आपका 570 is equals to 1/3 22/7 into रेडियस आपने को फाइंड आउट करना है into h दे रखा आपको कितना 15 सेंटीमीटर तो यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे चलिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1570 into 3 into 7 divided by 22 into 15 is equals to r square ओके अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है
तो यहाँ अपन इसको रेशनलाइज कर लेते हैं कि कौन सी टर्म किससे कट रही है। देखो 3 5 जा 15, 5 से कटेगा 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, तो ये 314 बार कट गया। ओके, अब यहां पर अपन क्या करेंगे, देखिए अगर पाई की वैल्यू 3.4 यूज लेता मैं तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 22 भी कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू अगर 3.4 होता तो यहाँ पॉइंट हटाने पर यहाँ डबल जीरो आ जाता, 314 से ये कितने बार कट जाता, 100 बार। तो रेडियस कितनी हो जाती है आपकी, ये मान के चलिए कि यहाँ 22/7 की जगह हमने 3.14 पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इजी कैलकुलेशन की, वैसे उससे भी वही आंसर आएगा। तो r² बराबर कितना आया, 100, implies that r बराबर √100, तो यहाँ √100 कितना आ जाएगा, 10, तो रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। आप देखिए फ्रेज कैलकुलेशन देख लीजिए, अपन ने क्या किया, वॉल्यूम 1/3 पाई r² h में पाई की वैल्यू 3.4 अपने को यूज ले ली, तो वॉल्यूम था आपका 1570 इज इक्वल टू 1/3 इनटू 3.14 इनटू 50 इनटू r²। ओके, h की वैल्यू अपन ने 15 पुट अप कर दी। तो क्या हुआ कि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 570 तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, और यहां पर क्या हो गया 3.14 इनटू 15 बराबर r²। फिर से कैलकुलेशन बता रहा हूं, किसी को डाउट रह गया हो उसी का, पहले मैंने 22/7 पुट अप किया, अभी मैंने 13.14 पुट अप किया, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, और इससे कितने बार कट गया, ये 314 बार। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो एंड ये कट जाएगा आपका 100 बार, तो 100 इज इक्वल्स टू r² implies that r बराबर √100 that is 10 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस है। So the question is here. See the next question, question number 4. So the next question is, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम क्या होता है 1/3 pi r² h, वॉल्यूम दे रखा आपको 48 पाई, तो वॉल्यूम की जगह तो मैंने 48 पाई पुट अप कर दिया, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू पाई रखी क्योंकि इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड हाइट इज 9 सेंटीमीटर, तो r² एज इट इज हाइट की जगह 9 पुट अप कर दिया। यहां से मुझे क्या निकालना, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो पहले मैं रेडियस निकालूंगा, फिर रेडियस का ट्वाइस करूंगा तो डायमीटर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 48 पाई इनटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर आ जाएगा, और पाई एंड 9 डिनोमिनेटर में चला गया था, 48 पाई और डिनोमिनेटर में कितना हुआ, पाई इनटू 9। ओके, अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से ये कितने बार कैंसिल हो गया, 16 इज इक्वल टू r², तो 16 इज इक्वल टू r² implies that r बराबर √16, so plus minus 4 implies that radius is equals to 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या आपको, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ट्वाइस इनटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर इज diameter of the base of that right circular cone। So our question is clear बेटे, चलिए next question। So the next question is a conical pit of top diameter, conical pit of top diameter
is 3.5 meter and its depth is 12 meter. Okay, then what is the capacity of this conical pit? So what is given? Diameter is 3.5 meter, implies the radius will be 3.5 upon 2 and vertical height is equals to 12 meter. Now capacity will be equals to capacity of conical pit. क्या होती है बेटे? 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो वैल्यू पुट अप करें, सॉल्व करें. देखिए 1/3 पाई 22/7 into 3.5/2 into 3.5/2 into height is 12. सो वैल्यू समझ में आया आपको? 1/3 पाई r स्क्वायर r into h. आप देखिए यहां क्या करेंगे बेटे? सबसे पहले इन डेसिमल को रिमूव करेंगे. यहां एक जीरो, ये एक जीरो, दोनों डेसिमल का. फिर ये 7 से ये कितने बार कट जाएगा? 5 बार. इस 5 से ये 4 बार और इस 4 से ये 12 3 बार और इस 3 से ये 3 बार. 3 कैंसिल. अब फाइनली क्या बचा? न्यूमरेटर में तो 22 बचा. यहाँ 35/20. तो इसको क्या करेंगे? 7 से 7 देखो 5 7 जा 5 की टेबल से क्या कर रहे हैं? 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20. तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 22/7 दैट इज 154 और डिनोमिनेटर में हो गया 4 मीटर क्यूब. और 154 को सिंपल डिवाइड कर ले 4 से, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 4 4 8 जा 32, रिमाइंडर 2 पॉइंट लगाया 0 और 4 5 जा 20. सो फाइनली वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटे? वॉल्यूम इज 38.5 किलोलीटर. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस conical pit. Okay, let us move the next question. The volume of a right circular cone is, एक right circular cone है जिसका वॉल्यूम दे रखा 9856 सेंटीमीटर क्यूब. If the diameter of its base is, diameter का बेस दे रखा, सॉरी बेस का डायमीटर दे रखा 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्या पूछ रहा है? रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर है एंड वॉल्यूम दे रखा, तो सबसे पहले निकालना हाइट ऑफ कोन. तो वॉल्यूम होता किसके बराबर बेटे? 1/3 पाई r स्क्वायर h के. यहां से r की वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहां h आ जाएगा. देखिए वॉल्यूम कितना? 9856 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 22/7 into r 14 into 14 into h. ये h है जो अपने को कैलकुलेट करना. तो यहां से देखिए h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो 9856 into 3 into 7 divided by 22 into 14 into 14. अब देखिए यहां से आपको क्या करना है? डिवाइड करना. देखो 7 2 जा 14. ठीक है. अब 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16. ये 2 से कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. फिर अपन क्या करेंगे? 14 से ये कंप्लीट डिवाइड होता है क्या? तो देखो 14 से कंप्लीट डिवाइड करने के लिए अपन यहां से डिवाइड करके देख लेते हैं. 4928 डिवाइडेड बाय 14. देखो 14 3 जा 42, 49 में से 42 जाएगा 7 7 2, फिर 7 14 5 जा 70 के रिमाइंडर बचेगा 2 8 14 2 जा 28. सो ये 14 से कितने बार कटेगा बेटे? 352 टाइम्स ये 14 से कट गया. ठीक है. इस 14 से मतलब 14 से भी ये कैंसिल आउट हो गया. अब थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं
कि रिमेनिंग कितना है 352 into 3/22। अब देखिए 22 से क्या ये कैंसिल होगा, तो 22 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 11 3 जा 33, रिमेनिंग बचेगा 2 and 2 22, 11 2 जा 22, और ये भी 11 से 2 बार कट जाएगा, और ये 2 से 32 अगेन 16 बार कट गया, तो हाइट आ गया आपका 16 into 3 दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटे, पेशेंसली अगर कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा। हाइट आपकी कितनी है 48 सेंटीमीटर कोन की हाइट। अब आपको क्या निकालना, स्लांट हाइट ऑफ कोन निकालना। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे बेटे, सेकंड पार्ट के लिए देखो स्लांट हाइट व्हाट इज इंटर रिलेशन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। r कितना है 14 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो यहां से अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि 14 का स्क्वायर आएगा आपका 196 और 48 का स्क्वायर आएगा आपका 2304 इज इक्वल टू स्लांट हाइट। तो L बराबर आ जाएगा 196 और 2304 को ऐड करेंगे तो 2500 हो जाएगा ये, और 2500 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटे 50। सो स्लांट हाइट आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। यहां ध्यान रखिए, देखो 14 का स्क्वायर 196 है, 48 का स्क्वायर 2304 है, 2304 को 196 में ऐड करेंगे तो 2500। अब देखो 2500 इक्वल्स टू l स्क्वायर, तो l की वैल्यू की इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2500 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 50। देखिए 50 को वापस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना है 5 5 25 00 दैट इज, ये याद रख लीजिए। तो स्लांट हाइट आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। अब लास्ट में क्या निकालना बेटे, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया चैप्टर चालू होने के फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था आपने पाई आर एल। तो पाई आर एल से अपन क्या करेंगे बेटे, देखो अपने पास क्या आ गया L 50 है और R आपका 14 है। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं बेटे। देखिए क्या है, R is 14 centimeter and L is 50 centimeter. So required curved surface area of right circular cone बराबर pi r L। तो 22/7 into 14 into 50, 7 से 14 2 बार कट जाएगा, ये 22 2 जा 44 into 50 सेंटीमीटर क्यूब। 5 से 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 and 2 2200 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द पार्ट थर्ड, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Then next question is a right triangle ABC with side 5 12 and 13 centimeter is resolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained। देखिए एक राइट एंगल का ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइडें कितनी है 12 5 एंड 13 सेंटीमीटर है। इसको रिजॉल्व किया जाता है किसके रेस्पेक्ट में, रिवॉल्व किया जाता है अबाउट द साइड 12 के। तो इस प्रकार का एक कॉनिकल वेसल्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, कॉनिकल वेसल्स जनरेट होगा। उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटे, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में कहीं एरर तो नहीं है। देखिए तो इसमें क्या हो गया बेटे कि दो तरीके से क्वेश्चन को समझना है कि देखो साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। जब
राइट सर्कुलर ट्रायंगल को रिवॉल्व किया जाता है तो रिवॉल्व किसके रेस्पेक्ट होगा? वर्टिकल हाइट के रेस्पेक्ट रिवॉल्व होगा। किसके रेस्पेक्ट? वर्टिकल हाइट के रेस्पेक्ट। तो वर्टिकल हाइट अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर जो साइड है उसके रेस्पेक्ट रिवॉल्व हो रहा। इसका मतलब जो बेसिकली अपना कौन जो जनरेट होगा उसकी हाइट 12 होगी, रेडियस उसका बेस r बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, स्लांट हाइट उसकी 13 होगी। तो इस तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को ये कहता है कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, उस केस में ये वाला सेकंड ऑप्शन बन जाता। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन नहीं है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जिसको हमें सॉल्व करना है कि जो इसकी वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर है उस साइड के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व किया जा रहा, मतलब रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर होगी एंड हाइट उसका 12 सेंटीमीटर हो गया, स्लांट हाइट उसका 13 है। तब अपने को ऐसा जो कौन जनरेट हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो उसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई है आपका 22/7 इनटू r स्क्वायर। r कितना है? 5 इनटू 5 इनटू हाइट कितना है इसकी? 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल है, इसका आप कैलकुलेशन करें, दैट्स योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। If the triangle ABC in the question 7 about is revolved about the side 5 centimeter, अगर देखो वही सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताया वो वाला क्वेश्चन आ गया कि सेकंड जो है कौन, देखो क्या किया, अगर ये 5 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट अगर रिवॉल्व होता मतलब वर्टिकल हाइट इसकी 5 हो जाएगी, रेडियस r इसकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, स्लांट हाइट अभी भी 13 रहेगी। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। चल दोनों कर लेते हैं। पहले वाला क्या ऑप्शन था बेटे? पहले वाला ऑप्शन अपना था ये वाला जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया कि अगर वर्टिकल हाइट 12 है, रेडियस इसकी 5 है, स्लांट हाइट l बराबर 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था कि हमने जो वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर उसके अबाउट अपन ने ट्रायंगल को रिवॉल्व किया, यहां वर्टिकल हाइट 5 के रेस्पेक्ट में अपन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना था? इसको अपन v1 मान लेते हैं। तो v1 का अपना 1/3 पाई r स्क्वायर का मतलब, तो v1 कितना था? 1/3 पाई r का मतलब देखो r था अपना 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। सेकंड केस में जो वॉल्यूम आएगा v2 यहाँ पे वो 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो v2 बराबर आ जाएगा 1/3 पाई का मतलब 22/7 और पाई भी रख सकते हैं। r स्क्वायर कितना है? r है 12 इंटू 12 इंटू हाइट 5 है। ये सेकंड केस में वॉल्यूम है। अब अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो फर्स्ट केस में जब 12 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट इसको रिवॉल्व कर रहा था तब वॉल्यूम v1 था, और अगर मैं 5 सेंटीमीटर जो साइड है उसके रेस्पेक्ट रिवॉल्व करता तो वॉल्यूम इन दोनों का रेशियो क्या है? तो v1/v2, तो 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12 और नीचे आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5। अब देखिए 1/3 पाई से तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो v1 is to v2 किसके बराबर आया? 5 is to 12 के। So this is the required answer। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा 12 सेंटीमीटर के अबाउट अगर अपन रिवॉल्व कर रहे हैं तो रेडियस 5 हो जाएगी, हाइट 12 होगी। अगर 5 सेंटीमीटर वाली साइड के रेस्पेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं तो हाइट 5 हो जाएगी, रेडियस 12, दोनों का वॉल्यूम निकालो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 12/5। So hope the question is clear. Now next question, last question. A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter.
क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटे। जब किसान अपने खेत में से वीट की क्रॉप पैदा करता है और खलिहान में जब वीट को भूसे से अलग करता है तो उसका जो ढेर बन रहा है, ठीक है, जब बहुत सारे गेहूं को एक जगह अगर हम इकट्ठा कर दें तो कैसा ढेर बन रहा है, वो हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ वन, इस प्रकार का एक ढेर बन रहा है। आपके घर में जब आपकी मम्मी फ्लोर के लिए जब गेहूं क्लीनिंग करती हैं और एक जगह अगर किसी भी बर्तन से अगर अपन किसी भी को जगह उसको अगर प्योर करते हैं तो इस प्रकार का एक ढेर मिलता है। ये प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको देखना चाहिए कि एक हीप ऑफ वीट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न कैसे बनता है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ऐसा एक गेहूं का ढेर है जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है। डायमीटर का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 10.5 मीटर है, ओके, यहां तक। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर हो जाएगी। और हाइट इसकी h = 3 मीटर दे रखा है, तो हाइट इतनी होगी 5 द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ वेट, ठीक है, गेहूं का जो ढेर है उसका वॉल्यूम कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप देखिए यहां क्या दे रखा 1/3 पाई 22/7 इनटू r स्क्वायर, r कितना 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट कितनी है 3। आप देखिए यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे 0, यहां डेसिमल रिमूव करेंगे 0। ध्यान से कैलकुलेट करना, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा कितना होता है 35। तो 105 को 7 15 बार कैंसिल करेगा। अब 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। और ये कितने बार कैंसिल होगा, देखो इस 3 से ये सीधा 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 2 और ये 11। आप देखिए अब बचा अपने पास 105 और 20, तो 105 को मैं वापस 5 से तो 21 और नीचे बच जाएगा 4, ठीक है। तो फाइनली क्या आंसर आया बेटे 11 इंटू 21 इंटू 3 अपॉन 8, 4 2 जा 8। अब इसको कैलकुलेट करना है तो यहां से देखिए अपने को कैंसिल आउट होने के चांस नहीं लग रहे हैं, तो 11 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। ये तो इजी कैलकुलेशन, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। The heap is to be covered by a canvas to protect it from rain, कि जो ऐसा ढेर है उसको अगर मुझे क्या करना है किसी कैनवास के कपड़े से ढकना है, तो कितना कैनवास का कपड़ा उसमें यूज आएगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बेटे, जो वॉल्यूम है उसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आया आपका सॉरी मीटर क्यूब, क्योंकि आंसर मीटर में चल रहा, मीटर क्यूब बी द वॉल्यूम ऑफ व्हीट हीप है। अब अपने को क्या दे रखा, रेडियस दे रखी, हाइट दे रखी, तो सबसे पहले अपन स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट से फिर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे पाई आर एल। तो आर गिवन, एल अपने पास पता नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन सॉल्व करते हैं एल। तो एल कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, एल के लिए देखो अपने को दे रखा है रेडियस आर बराबर 3 मीटर एंड हाइट 3 मीटर और रेडियस दे रखा आपको 10.5 मीटर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5.25 हो गया, 5.25 मीटर। अब यहां से अपन क्या करेंगे, r नाउ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर होता है। तो r की वैल्यू तो r कितना है 5
5.25 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। तो l कितना हो जाएगा रूट ऑफ 5.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 5.25 का स्क्वायर कितना होगा, ये टोटल आएगा देखो 5.25 का स्क्वायर आएगा आपका 27.5625 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 36.5625। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो 6.06.05 will be the approximate square root of 36.525। तो स्लांट हाइट आ गई आपकी कितनी 6.025। नाउ एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास कितना होगा बेटे पाई आर एल। तो पाई का मतलब 22/7, आर कितना था अपना 5.25 into L कितना आया 6.05 मीटर स्क्वायर। So this will be the area of canvas required to cover the conical heap of a weight. So question is very simple exercise थी, simple 1/3 pi r square h यूज लिया। दूसरा फॉर्मूला जो मैक्सिमम यूज हुआ r square plus h square is equals to L square। मेन पार्ट इसमें था दैट वाज कैलकुलेशन। जैसे इसी पार्ट का था कि 5.25 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो 27.5625 कैसे आता, 5.25 को 5.25 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें 9 ऐड करेंगे 36.5625, इसका स्क्वायर रूट है 6.05। सो हाउ you like this exercise? Please like it, share it and subscribe it. Thank you.